Hello students, today we will learn basics of network analysis and we start this session with the most fundamental quantity of electricity which is responsible for all electric phenomena. What is that? That is charge, electric charge. Okay, after charge we will discuss current. What is current? Current is nothing but flow of charge only. Okay, and after this we will discuss voltage. Okay, to move charges we need some external force. Okay, that is known as EMF or voltage. Okay, अब जैसे ही करंट और वोल्टेज हमारे सामने आते हैं तो हमें एक लॉ याद आता है विच इज ओम्स लॉ. सो आफ्टर वोल्टेज वी विल डिस्कस ओम्स लॉ एंड जैसे ही ओम्स लॉ की बात होती है तो एक और प्रॉपर्टी याद आती है विच इज रेजिस्टेंस. ओके, सो आज के सेशन में हम इन पांचों पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस इंडक्टेंस, capacitance, okay, inductance, capacitance, power and energy. Okay, power and energy. Okay, so let us start this session with charge. Okay, what is charge? So जैसे मैंने आपको बताया कि चार्ज जो है आपका मोस्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिसिटी का एंड इट इज द ओनली थिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इलेक्ट्रिक फिनोमेना. बाय डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल. ओके, और मैटर बेसिकली. ओके, so what is matter and what is atomic property? Okay, हम सभी ने एलिमेंट्री फिजिक्स में पढ़ा है बच्चों कि सारे मेटल्स एटम से मिलके बने हुए होते हैं और सारे एटम्स में हमारे पास, यहाँ पर आप देखिए इस डायग्राम में, यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके, नेगेटिव चार्ज है जिन पर, पॉजिटिव जिन पर लिखा हुआ है दीज आर प्रोटॉन्स, और जो रेड से हैं जिन पर न प्लस है माइनस दीज आर न्यूट्रॉन्स. ओके, ये हमने एलिमेंट्री फिजिक्स में पढ़ा है. ओके, सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट? ओके, इट इज 1.602 into 10 raised to the power -19 कूलम. राइट, प्रोटॉन का ये प्लस 1.602 into 10 raised to the power -19 कूलम हो जाता है और कुछ नहीं. राइट, सो इफ आई वांट टू नो in 1 coulomb of charge how many electrons are there, so what I will do, I will just take a reciprocal of this 1.602 into 10 raised to the power -19 and that will come out as 6.24 into 10 raised to the power +18, which is a huge number. This much number of electrons are required, okay, to make 1 coulomb of charge. ओके, चलिए अब देखते हैं when charges flow what happens. Currents are created in that conductor whenever charges move, right? So current is nothing but mathematically it is time rate of change of charge. Okay, we can write it as dq by dt, time rate of change of charge. Okay, what will be its unit here? Okay, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, टाइम का होता है सेकेंड. ओके, सो कूलम पर सेकेंड इज नथिंग बट एम्पियर. सो यूनिट ऑफ करंट इज नथिंग बट एम्पियर दिस वे. ओके, नाउ इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज कैपिटल आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी. ये भी कोई अलग चीज नहीं, हम सीखेंगे कि क्या बेसिक डिफरेंस होता है इसमें और इसमें. चलिए, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगर हम इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड तो वी कैन फाइंड Q is equals to इंटीग्रेशन I dt. ओके, और लिमिट क्या हो जाएंगी? -∞ to t. ओके, और
इस इंटीग्रेशन को वी कैन ब्रेक इनटू टू पार्ट्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 I dt प्लस 0 to t I dt. What is this minus infinity to 0 negative time? Okay, we understand this positive time. Okay, क्या कोई नेगेटिव टाइम भी होता है? हमें तो नहीं लगता नेगेटिव टाइम होता है, बट नेटवर्क एनालिसिस में होता है और इसका क्या मीनिंग है हम उसे समझेंगे. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद अ वेरी simple example. Okay, let us consider a circuit which is having a battery of 10 volts and it is connected across a resistance of a resistor of 2 ohms resistance. Okay, and this is connected with the help of switch only. Okay, this is connected with the help of switch. Okay, when switch is open, there will be no current through the resistor. Okay, this will be 0, right? But when this switch is closed, this will be short circuited. Okay, and circuit will be closed and then current I will be flowing through the resistor and the value will be 10 by 2, which is 5 ampere, right? So in network analysis, the time at which we close the switch or the time at which we connect a source to the load or load to the source is actually called t is equals to 0 instant. Okay, it is called t is equals to 0. And switch को close करने से पहले के टाइम को आप बोलते हो नेगेटिव टाइम. ओके, और उसके बाद आपका होता है पॉजिटिव टाइम. ओके, सो what is t is equals to 0? T is equals to 0 is the instant at which switch is closed. Switch is closed. And what is negative time? Negative time is it is before closure of the switch. And what is positive time? It is after closure of the switch, right? चलिए, यहां पर क्या मतलब है नेगेटिव टाइम का, समझ पा रहे हैं? इसका मतलब है कि हमने सोर्स को लोड से कनेक्ट करने से पहले के टाइम को यहां पर मेंशन किया है. ओके, नाउ हम इस चीज को एक्चुअली स्विचिंग ट्रांजिएंट जब पढ़ते हैं तब बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है बेटा ये टॉपिक, ठीक है ना? ओके, और उसमें एक्चुअली वहां पर होता है t इज इक्वल्स टू 0 माइनस एक चीज होती है, t इज इक्वल्स टू एक इंस्टेंट होता है 0 प्लस. ओके, ये मैं अभी यहां इस सेशन में डिस्कस नहीं करूंगा, ये जब हम ट्रांजिएंट्स पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे. लेकिन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन t इज इक्वल्स टू 0 माइनस एंड t इज इक्वल्स टू 0 प्लस. ओके, मुझे एक चीज आपको बतानी है कि मैथमेटिकली t इज इक्वल्स टू 0, t is equals to 0 minus and t is equals to 0 plus all are same. T is equals to 0 is 0 time actually. Okay, but what is the meaning here of negative time? Actually source connect करने से पहले अगर कोई करंट फ्लो हो रहा था या फिर कोई चार्जेस थे उसे हम कहते हैं इनिशियल चार्ज. सो माइनस इन्फिनिटी टू 0 जो इंटीग्रेशन से मुझे मिलेगा चार्ज, दैट विल बी कॉल्ड एज इनिशियल चार्ज. ओके, राइट. और स्विच क्लोज कर देने के बाद तो जो भी इंस्टेंट ऑफ टाइम है और जो भी करंट का वैल्यू उससे आप निकाल सकते हो. फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं जो हमने यहाँ पर एग्जांपल कंसिडर कर लिया है. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q? ओके, लेट अस अज्यूम देयर इज अ क्वेश्चन लाइक एट t इज इक्वल्स टू 5 मिली सेकेंड्स कितने चार्जेस फ्लो हो चुके हैं मुझे ये पता लगाना है. ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों. Okay, so this can be evaluated with the help of this relation only between Q and I, integration wala relation. Okay, so here minus infinity to 0, I is 0, current is 0 in this diagram, right? Because switch was open. So this will be 0, initial current or initial charge was 0, and for 0 to t, okay, 0 to t, this I is equals to 5 ampere.
right? So this can be written as this relation or this formula can be used like this here. Okay, now if we integrate it, what we will get? We will get 5t and 0 to 5 millisecond. 5 milliseconds means 10 raised to the power minus 3. Okay, substitute किया तो we will get q is equals to 5 into 5 into 10 raised to the power minus 3 minus of 0, that will come out as 25 millicoulomb, राइट? तो ये आपका आंसर हो गया. ये आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं. ओके, देखिए अब ये था एलिमेंट रेजिस्टेंस. ओके, रेजिस्टेंस तो ना कुछ स्टोर तो करता नहीं है चार्जेस, इसलिए यहाँ पर ये जो इनिशियल चार्ज थे 0 हो गए. ओके, अगर यहाँ पर कैपेसिटेंस होता और उस पर कुछ इनिशियल चार्जेस होते, ओके, तो यहाँ पर कुछ इक्वेशंस हो सकती थी, वहां पर रिलेशन जो रहेगा उसके हिसाब से आप यहाँ पर 0 नहीं लिखते हैं उस टाइम पर. ओके, ये सारी चीजें हम ट्रांजिएंट एनालिसिस जब करेंगे तब पढ़ेंगे बहुत अच्छे से. ओके, आई होप अभी तक आपको यहाँ पर क्लियर है सारी चीजें. ओके, चलिए अब हमने यहाँ पर चार्जेस और करंट के बीच में रिलेशन देख लिया है. ओके, अब हम चलते हैं आगे और हम पढ़ते हैं वोल्टेज. ओके, व्हाट इज वोल्टेज? सो voltage is nothing but EMF, electromotive force. Okay, it is nothing but electromotive force, okay, which is required to move a charge from infinite, okay, to a reference point. Okay, now it is also called as potential. It is also called as potential. Okay, mathematically this voltage is dW by dq only, work done to move a charge. Okay, what will be the unit? Work done की unit होती है joules and charge की होती है coulombs, right? तो joule per coulomb is nothing but volts. Okay, जो कि यहाँ मेंशन किया हुआ है, volts हो गया है वोल्टेज का यूनिट. ओके, सो हम देखेंगे कि अब वोल्टेज और करंट पढ़ चुके हैं, तो एक फंडामेंटल लॉ है विच इज ओम्स लॉ, है ना, जो हमारे दिमाग में डायरेक्टली आता है जब भी हम वोल्टेज और करंट की बात करते हैं. तो चलिए ठीक है, तो व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट voltage or potential difference across a resistor or a conducting material is directly proportional to the current flowing through the resistance. Okay, for example मैंने यहाँ पर ये resistor लिया है, ये conducting material है, इसमें okay, इसके across मैंने एक बैटरी लगा दी है, लेट अस से पोलैरिटी है प्लस माइनस, मैग्नीट्यूड है E. सो एक क्लोज सर्किट है, यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है I एम्पियर. सो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज होगा विच इज V. ओके, जिसको आप पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज ड्रॉप भी बोल सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर केस. ओके, सो ओम्स लॉ सेज दैट दिस V इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. ध्यान क्या रखना है, द रिलेशन given by ohms is between V and I, not E and I. Okay, so इसको मैं और लिख सकता हूं, V is equals to RI, where R is a proportionality constant. It's a constant and it is called resistance. It is a resistance. क्या आता है resistance? ये हम देखेंगे. Okay, क्या होता है resistance? ये हम देखेंगे. चलिए, so यहां पर ओम्स लॉ के लिए जो एक कंडीशन होती है वो भी ध्यान रखनी होती है, एंड दैट कंडीशन इज द टेम्परेचर शुड बी केप्ट कांस्टेंट ऑलवेज. ओके, अगर ये टेम्परेचर कांस्टेंट है तभी ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट करेक्ट है, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा. ओके, वन थिंग इज ऑल्सो देयर to be noted, which is this Ohm's law is only applicable to linear elements. ध्यान रखिएगा बच्चों, it is only applicable to linear elements. हम आने वाले सेशंस में देखेंगे कि हमें क्या होता है हमारे लीनियर एलिमेंट्स, नॉन लीनियर एलिमेंट्स, टाइम इनवेरिएंट, वेरिएंट, यूनिलैटरल, बायलैटरल, एक्टिव, पैसिव, लम्प्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, 10 तरह के हम
एलिमेंट्स पढ़ेंगे। ओके, सो ओम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू लीनियर एलिमेंट्स। ओके, चलिए हम देखेंगे आगे कि किस तरह से हम इस रेजिस्टेंस को लीनियर बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस नाउ। सो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच ओपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ओके, ये हम सभी जानते हैं, है ना। प्रैक्टिकली इट इज ऑब्जर्व दैट, देखिए आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस मैंने लिए हैं जो कि ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया के हैं, कुछ कम के हैं, फिर और कुछ कम के हैं, राइट। कुछ की लेंथ कम है, कुछ की लेंथ ज्यादा है। ओके, तो प्रैक्टिकली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट दिस रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ओके, and it is also inversely proportional to cross sectional area of that material only, right. Combinedly we can write it as R is proportional to L by A, or it can also be written as rho L by A. This is a very famous formula actually, okay, of resistance. Okay, ये आपने कई बार पढ़ा होगा। Okay, so what is this rho here? What is this rho here? Rho is nothing but it is resistivity. It is resistivity, or it is also called as specific resistance. Specific resistance. Okay, बताइए क्या इसकी यूनिट होगी? इसकी यूनिट क्या होगी? आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। रो कैन बी रिटन एज आर ए अपॉन एल। ओके, एल की यूनिट होगी मीटर, एरिया की होगी मीटर स्क्वायर। ओके, सो एंड आर की होती है ओम्स, राइट। इट इज मेजर्ड इन ओम्स। ओके, सो रेजिस्टिविटी की यूनिट बन जाएगी ओम मीटर। ओम मीटर, always remember that. Okay, and this resistivity depends upon material type. Okay, or various materials have different resistivity value. Okay, for example, सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर को माना गया है, तो उसका रेजिस्टिविटी सबसे कम है। ओके, जिसका कंडक्टिविटी ज्यादा है उसका रेजिस्टिविटी बहुत कम है। ओके, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, एक चीज और देखी गई है, जिस तरह से ओम्स लॉ में बताया गया कि टेम्परेचर शुड बी केप्ट कांस्टेंट व्हाइल स्टेटिंग द ओम्स लॉ, राइट। सो यहां पर ऐसा क्यों है हम देखेंगे। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस। ओके, और क्या रिलेशन है हम सभी जानते हैं, सिंपल से फॉर्मूले से वो बताया जा सकता है। आर इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा delta T, where this alpha is temperature coefficient and delta T is the difference between temperatures at R and R naught. Okay, इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं, R2 is equals to R1 into 1 plus alpha T2 minus T1. Okay, where this is temperature T2 for resistance R2, this is temperature T1 for R1. Okay, and what is the unit of this temperature? It is degree centigrade. So ये बताइए, ये जो अल्फा है जिसको मैंने नाम दिया है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी पर डिग्री सेंटीग्रेड। पर डिग्री सेंटीग्रेड, जिस तरह से हमने रो की वैल्यू, रो की यूनिट निकाली, उस तरह से हम अल्फा की भी निकाल सकते हैं। ओके, यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि दिस अल्फा कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। दिस अल्फा कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज इट कैन बी नेगेटिव। ओके, डिपेंड्स अपॉन मटेरियल टाइप। ओके, सो जिनका अल्फा पॉजिटिव होता है उसे आप कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल और टाइप, और जिनका अल्फा नेगेटिव होता है उसे कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल। ओके, सो क्या मीनिंग होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का? इसका मतलब होता है व्हेनेवर वी इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। ओके, एंड इन नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल्स व्हेनेवर temperature is increased, resistance decreases. Okay,
सो क्या आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं? यस, बिल्कुल दे सकते हैं। पॉजिटिव किस में होता है ऐसा? व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। दिस हैपेंस इन कंडक्टिंग मटेरियल्स और कंडक्टर्स, लेट अस से। ओके, बट इन सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल रिड्यूसेस, राइट? सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ रिलेशन, रेजिस्टेंस का इसकी डायमेंशन मतलब लेंथ और एरिया से रिलेशन। ओके, सो ये जो रिलेशन हमने निकाला है इसको हम यूज करेंगे थोड़ा सा पीछे जाकर, फिर से कुछ और समझते हैं, ठीक है ना? सी, दिस ओम्स लॉ कैन ऑल्सो बी रिटन एज I is equals to V by R. Okay, and this I is equals to, okay, this becomes this R is what? This is rho L by A. Okay, so this can also be written as I upon A is equals to 1 upon rho into V by L, right? So ये बताइए what is current over area? What is current over area? So always remember anything over area is always density. So here it is current over area, that means it is current density, और current density को आप J से represent कर सकते हैं, denote करते हैं। Okay, for example flux density is nothing but flux over area, बच्चों, है ना? Always remember anything over area is always density. Okay, now what is 1 upon rho? 1 upon rho is nothing but sigma. Okay, rho is resistivity and reciprocal of resistivity is sigma, which is conductivity. Okay, and what is V by L? It is electric field intensity. Anything over area, unit length is always intensity. Okay, and बहुत ही जरूरी बात जो ध्यान में रखने की है, this current density and electric field intensity are actually vector quantity. These are vector quantity. Okay, but current and voltages are scalar quantity. These are scalar quantity. Always remember that. Okay, vector quantity होती है current density and electric field intensity, but voltage and currents are actually scalar quantity. Okay, चलिए ये हमने रेजिस्टेंस के एक रिलेशन से देखा। ओके, अब टेम्परेचर के रिलेशन से हम देखें, अगर हम डिस्कस करना चाहें कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल। ओके, सो वी नो दैट इन अ कंडक्टर, ओके, इन अ कंडक्टर if we increase the temperature, the thermal energy acquired by the electrons increases. Okay, and because of this the collision of electrons increases. Collision between electrons increases. Okay, and this reduces the mobility of electrons, और mobility of electrons अगर reduce हुआ, that means resistance will also increase. Okay, that way whenever temperature increases, resistance also increases for conducting materials. Okay, semiconducting material और insulator में क्या होता है ये आप सीखेंगे या तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इंजीनियरिंग मटेरियल्स में। चलिए अब देखते हैं कि हमने जिस तरह से बोला ओम्स लॉ से कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है विच इज अ लीनियर एलिमेंट, तभी हम ओम्स लॉ पर लगा रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है लीनियर एलिमेंट पर। ओके, सो वैसे तो मैं आपको आने वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट क्या होता है, ठीक है? बट अभी हम ओम्स लॉ के लिए समझना चाहेंगे कि ओम्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, हर जगह ओम्स लॉ नहीं लगता है, सारे लॉज कुछ ना कुछ कंडीशंस के साथ होते हैं। ओके, सो अब देखिए कैसे बताया जाता है कि एलिमेंट लीनियर है या नॉन लीनियर है। सो रेजिस्टेंस का एग्जांपल लेते हैं। सो इफ
any elements vi characteristics is linear. ओके, कहने का मतलब है कि अगर मैं ओम्स लॉ जो कहता है v इज इक्वल्स टू आर आई, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं ऑन वी आई प्लेन, हियर v एक्स एक्सिस पर हमने लिया i, ओके, एंटायर प्लेन, ओके, मतलब माइनस वी टू प्लस वी एंड माइनस आई टू प्लस आई. ओके, सो यहां पर आप देखेंगे अगर मुझे इसको ड्रॉ करना है तो इट्स नथिंग बट equation of straight line passing through origin, right, where v is y axis element, r is some constant which will be slope, and I is your x axis element, right? So from here we can observe that this equation will be drawn on this graph like this. The slope will always be constant. Okay, the slope here will always be constant and the line is passing through origin always. Okay, चाहे आप स्लोप यहां निकाले चाहे यहां निकाले, that will always be constant. and कितना होगा वो dv by di और v by i, that is r only. okay, v y एक्सिस पर है, i आपका horizontal एक्सिस पे है, तो the slope is nothing but r only. okay, the slope of this line is resistance of that material only. okay, so this is called linear element, okay, whose characteristic is like this, straight line passing through origin, okay, having constant slope throughout the characteristics. okay, slope change नहीं होना चाहिए. this is the basic definition of linear element. okay, चलिए, आपने कई बार देखा है कि I होता है आपका y एक्सिस पर, okay, और V होता है, वोल्टेज होता है x एक्सिस पर. ओके, इन दैट केस बताइए क्या लाइन कैसे बनेगी. ओके, इक्वेशन विल बी नाउ 1 अपॉन r इंटू v. ओके, अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा y विल बी इक्वल टू mx, so this is again the same equation, y is equals to mx. so सेम प्लॉट रहेगा अभी भी. ओके, बट क्या डिफरेंस आएगा, डिफरेंस में इतना आएगा कि जो ये स्लोप होगी दिस विल बी i by v, that is 1 upon r now. okay, the slope will be 1 upon r. okay, 1 upon r means it is g. okay, g is what, conductance. g is conductance and its unit is minus ओम इनवर्स, या फिर आप उल्टा ओमेगा बना सकते हैं, या फिर आप MHO लिख सकते हैं, या फिर सीमेंस. ओके, सीमेंस इज द यूनिट, एस से आप इसको डिनोट करते हैं. ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन है. ओके, दैट इज व्हाई आर इज अ लीनियर एलिमेंट एंड ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू रेजिस्टेंस. ओके, सो नॉन लीनियर एलिमेंट के एग्जांपल्स भी बता दीजिए सर. ओके, तो चलिए देख लें. नॉन लीनियर एलिमेंट्स, जैसे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी इस तरह से कुछ बन रही है, यहाँ पर आपने लिया v, यहाँ पर लिया आपने i. ओके, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं. बहुत सारे एग्जांपल हैं नॉन लीनियर एलिमेंट्स के. ओके, यहाँ पर आपने ले लिया i, यहाँ पर आपने ले लिया v. ओके, सो इफ, अब आपको बताना पड़ेगा बच्चों, अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से बन के आई है, ओके, या फिर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से बन के आई है, तो बताइए ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस चीज को बता रही है, किस चीज के लिए बना है. देखिए क्या बता रहा है, इट इज शोइंग दैट करंट इज जीरो बट वोल्टेज इज देयर. लेट अस से सम कैपिटल V is there. Okay, this graph is showing that voltage is zero but some current is there. Let us say I is there. Okay, so ये कब होता है बच्चों, ये सिर्फ होता है, ये वाला केस होता है whenever there is an open circuit. Okay, and this happens when there is a short circuit, right? So these two elements are actually non-linear. Okay, so whenever the case of open circuit occurs or whenever short circuit happens, we cannot apply Ohm's law. We cannot apply Ohm's law here. Okay, always remember that. Similarly, for voltage source or current source whose characteristics are again non-linear, so Ohm's law is not applicable to sources as well. Okay, चलिए, I hope आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा. Okay, आपको
कुछ कमेंट करने को कहा गया है, आप बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन t इज इक्वल टू 0 माइनस एंड t इज इक्वल टू 0 प्लस। ओके, और नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, पावर एंड एनर्जी के बारे में। ओके, सो आई होप you enjoyed it and you will learn through this. Thank you. See you in the next lecture.